Good morning, dear students. My name is Swati Verma and I am working as a soft skills and verbal ability trainer. In today's video, we are going to learn about definite articles. But before just jumping on to our today's lecture, firstly, let us recall what we have studied in our previous lecture. So just 1 minute to recall everything. In the previous video, I have told you something about articles. I have told you that articles are also known as determiners, or they are also called as such adjectives which are used before noun to identify them, right? And in the previous lecture, we have studied that articles are of two different types. The first was indefinite article and the second was definite. Indefinite article is such type of articles which are used which is before such nouns which are not specific, right? And this was divided into two categories, that is a and an. Based on the sound we used the indefinite articles. A was used before such nouns which were started using any consonant sound, whereas an was used before such nouns which has a vowel sound with. So that means if I talk about any consonant, let us take cat. So it is starting from the word C, and when we are pronouncing it, it comes k. That's why we will use a, cat. Whereas when we talk about an, so as I told you that whenever any vowel is used, any vowel sound is coming on the beginning of any noun, for example, ice cream. Many of you must be liking it so much. So ice cream. First initial is I and I is a vowel. Therefore, we will use article an. Now this much we have studied, and we have studied so many rules of articles a and an as well. But in today's video, we are going to see what this definite article actually is. Okay, so let's come to our next slide. Now we have come to the rules or uses of the definite article. We have studied what was the indefinite article and what is the definite article. Definite article is only one, that is the, which is used to identify or determine some specific nouns. And what am I meaning by the specific noun? That we will see in the rules when we will study one by the one. So the use one says, use the when talking about something which is already known to the listener or which has been previously mentioned, introduced or discussed. That means जब भी हम किसी भी ऐसे नाउन के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हमें पहले से ही पता है, दोनों को ही पता होना चाहिए, स्पीकर को भी और लिसनर को भी. अगर मैं कहूँ वो किताब देना, हिंदी में अगर मैं बोलूँ वो किताब देना, तो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे वो किताब के बारे में बात कर रही हूँ जो मुझे भी पता है और मेरे सामने जो मेरा लिसनर है उसे भी पता है कि मैं किस किताब की बात कर रही हूँ. सेम चीज अगर मैं बोलूँ कि जो तुमने मेरा कल पेन लिया था मुझे वापस करो, तो मैं क्या बोलूंगी, गिव मी द पेन, गिव मी द पेन, दैट्स इट. नाउ मुझे उसका आइडेंटिफिकेशन देने का जरूरत नहीं है कि मैं कौन से पेन के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी पता है कि मैं कौन से पेन के बारे में बोल रही हूँ और जो लिसनर है उसे भी पता है कि वो जिसने जो कल पेन मैंने उसे दिया था वो अभी तक जो उसने वापस नहीं किया है, मैं उस पेन के बारे में बात कर रही हूँ. तो जब भी किसी भी नाउन जो ऑलरेडी मेंशन्ड है प्रीवियसली, स्पीकर को भी और लिसनर को भी, दोनों को उस चीज के बारे में ऑलरेडी पता है, तब हम उस नाउन के पहले द का यूज करते हैं. इसको और अच्छे से समझने के लिए हम दोनों एग्जाम्पल्स को देखते हैं. तो एग्जाम्पल में जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, आई हैव अ कैट. यहाँ पे सिंपली जो स्पीकर है वो बोल रहा है कि उसके पास एक कैट है, तो कोई भी कैट हो सकती है, कैट की कोई कैटेगरी नहीं है. यहाँ पे कैट एज अ कॉमन नाउन यूज किया गया. ठीक, अब यहीं पे नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हाट हैपेंड, द कैट इज ब्लैक.
ना यहाँ पे मैंने कैट के पहले द क्यों लगाया? देखो, पहले सेंटेंस में मैंने ऑलरेडी कैट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। अब मुझे भी पता है कि मेरे पास एक कैट है, और जिसको मैंने बोला कि मेरे पास कैट है उसको भी पता है कि हाँ भाई मेरे पास एक कैट है। अब क्योंकि मुझे उसी स्पेसिफिक कैट की बात करनी है कि जो मेरे पास है, इसीलिए मैंने उस कैट के पहले द लगाया और उसको बताया स्पेसिफाई करके कि इस कैट का कलर ब्लैक है। क्लियर? इसीलिए यहाँ पे मैंने यूज किया उस कैट के पहले द। ठीक, तो मैं वापस से रिपीट करती हूँ कि जब भी किसी भी ऐसे नाउन की बात होगी जो पहले से ही नोन होंगे, यानी कि जो पहले से ही स्पीकर को भी पता होगा और लिसनर को भी पता होगा, तब हम द लगाएंगे उस पर्टिकुलर नाउन के पहले। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स कम टू आवर यूज नंबर सेकेंड। सो यूज नंबर 2 थोड़ा सा समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और समझाना चाहूंगी। देखिए, आप सभी को पता होगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, राइट? एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो क्वांटिफायर्स की तरह यूज किए जाते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए। यानी कि अगर कोई भी वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है, उसे क्वालिफाई करता है, उसके बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करता है, तो उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे आई सॉ अ ब्यूटिफुल गर्ल। ठीक है, यहाँ पे मैं उस गर्ल की विशेषता बता रही हूँ ना, उस गर्ल को क्वालिफाई कर रही हूँ कैसे, कि मैंने एक सुंदर लड़की देखी। ठीक है, ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव्स को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज पे बेस्ड। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स की मेनली 3 डिग्रीज होती हैं जो हमें समझनी है। ठीक है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, मेनली 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होती है। पहली है पॉजिटिव, दूसरी डिग्री आती है कंपैरेटिव, और जो लास्ट डिग्री की हम बात करेंगे वो है सुपरलेटिव। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि एडजेक्टिव्स की तीनों डिग्रीज होती हैं, हम बस रिकॉल कर रहे हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, एडजेक्टिव्स मेनली 3 डिग्रीज कैरी करता है। पहली है पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री वो डिग्री होती है जब हम किसी भी एक पर्सन की क्वालिटी बताते हैं। जब भी हम किसी एक पर्सन को क्वालिफाई करेंगे तब हम वहां पे पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, तो व्हाट आई सेड, मैंने सिर्फ एक पर्सन के बारे में बात की, और कौन पर था वो पर्सन? राम। ठीक, एग्जाम्पल से समझिए, राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पे आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट विच इज राम। देयरफॉर मैंने इस राम के बारे में बात कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैंने लगाया पॉजिटिव डिग्री। ठीक, ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? इस बॉय को। ठीक है, अब कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? वो चीज जब हम दो चीजों के कंपैरिजन करते हैं, किसी भी दो नाउन दो प्रोनाउन का अगर हमें कंपैरिजन करना है, दोनों में से बताना है कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, करते हैं कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, गुड की ही कंपैरेटिव डिग्री ले ले तो वो क्या होता है? बेटर होते हैं। ठीक है, जैसे बेटर की लेजियर, लेजिएस्ट। जब दो लोगों, तब कंपैरेटिव डिग्री, पॉइंट मेरा समझाने का था, दैट डिग्री इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी एक को बहुत सारे में से, सो मेनी, हमें किसी एक के बारे में बताना है कि शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर क्लास। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं पूरी क्लास में किसी एक लड़की को सबसे विशेष मान रही हूँ, राइट? तो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव, कंपैरेटिव जब दो में कंपैरिजन करना हो, और सुपरलेटिव मतलब बहुत सारों में हमें कंपैरिजन करना हो और उसमें से किसी सबसे अच्छे को निकालना हो। ठीक है, अब गुड हो गई कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो वो हो जाएगी बेस्ट। ठीक है, तो जब भी हमें किसी भी सुपरलेटिव डिग्री की बात करनी होगी तो उसका मतलब क्या होगा? जब बहुत सारे में है। ठीक,
बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको दिया एक मोस्ट ब्यूटिफुल, राइट, मोस्ट इंटेलिजेंट, टॉलेस्ट, ठीक है, वाइडेस्ट, whatever that ends with est, और उसके पहले अगर हम मोस्ट लगा देते हैं तो वो डिग्री सुपरलेटिव बन जाती है। आई होप आपको डिग्रीज क्लियर हो गई होंगी। पहली थी पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव। पॉजिटिव डिग्री जब हमें किसी एक के बारे में बात करनी हो, एक की क्वालिटी बतानी हो। कंपैरेटिव यानी दो में कंपैरिजन करना हो, कौन ज्यादा अच्छा है। और सुपरलेटिव सब में से किसी एक को चुनना हो, ठीक, बहुत सारे में से, अमंग सो मेनी। सो नाउ अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या था। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ऑलरेडी लिखा है, यूज द विथ सुपरलेटिव्स सच एज द बेस्ट, द बिगेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लीस्ट इंटरेस्टिंग, एक्सेट्रा। तो अभी हमने पढ़ा कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, ठीक है, जो भी अगर हम बहुत सारे में एक को बेटर माने, ठीक है, एक को सबसे अच्छा माने। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सुपरलेटिव्स के साथ हमेशा क्या आता है, द। तो जब भी हम किसी सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तब याद रखिएगा कि हम वहां पे द ऑलरेडी उसके पहले लगाएंगे। ये फैक्ट है कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले द जरूर लेती है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, द बेस्ट, बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले मैंने द आर्टिकल लगाया। सिमिलरली बिगेस्ट, बिगेस्ट सुपरलेटिव, ठीक है, द लगा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लास में जब भी क्वेश्चंस बताया जाता है तो क्या होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू स्टडी, राइट। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, सब में से सबसे ज्यादा, ठीक है। तो मोस्ट के पहले यहाँ पे द लगा दिया। नेक्स्ट आता है द लीस्ट इंटरेस्टिंग, यहाँ पे भी लीस्ट सबसे कम, इसलिए द लगा दिया। आई होप इतना क्लियर होगा आपको कि जब भी हम किसी भी सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तब हम उसके पहले एक आर्टिकल जरूर लगाते हैं, क्योंकि हमें उसको डिफाइन करना है, डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट थिंग बनानी है, वो एक डेफिनेट चीज है, इसीलिए उसके पहले द आर्टिकल लग रहा है, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट रूल। The next rule says, the plus a singular noun is used oftenly when we talk or make generalization about certain topics. जब भी हमें, इस रूल का कहने का मतलब ये है कि हमें कभी भी किसी भी कुछ टॉपिक्स होते हैं उनको जनरलाइज करना है, जनरल टर्म में हमें अगर बात करनी है, ठीक है, तब हम उसके आगे द आर्टिकल का यूज करेंगे। और वो कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी प्लांट हो, ठीक है, कोई भी एनिमल हो, कोई भी इन्वेंशन हो, कोई करेंसी हो, या कोई भी बॉडी पार्ट हो। तो जब भी हमें इनमें से किसी भी चीज को जनरलाइज करना होगा, इन जनरल टर्म्स में बात करनी होगी, तब हम इनके पहले द आर्टिकल जरूर लगाएंगे। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं बोलूं द हार्ट पंप्स ब्लड टू आवर बॉडी ऑर्गन्स। तो यहाँ पे मैंने एक हार्ट, एक बॉडी पार्ट है, ठीक, उसको मैंने क्या किया, जनरलाइज कर दिया कि हार्ट का काम क्या होता है, बॉडी पार्ट्स में, बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड को पंप करना, ठीक। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ ना, डेफिनेट बता रही हूँ कि उसका काम क्या है, ठीक है। तो जब भी हम किसी को जनरलाइज करते हैं, किसी भी चीज को, इनमें से, चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, या एनिमल हो, इन्वेंशंस हो, एक्सेट्रा, तब हम उनके साथ में आर्टिकल द का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। सो हमारा यूज 4 कहता है दैट द कैन बी यूज्ड विद प्लूरल फैमिली नेम्स टू रिफर टू द फैमिली एज अ ग्रुप। अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा और आपको एग्जांपल्स के साथ समझाना चाहूंगी। देखिए, इसका मतलब है कि हमें अगर कभी भी फैमिली नेम्स को एक प्लूरल ग्रुप की तरह रेफर करना हो, ठीक है, तब हम उसके पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे। क्या मतलब, द रॉबिन्सन्स लव टू वोकेशन इन फ्लोरिडा, ठीक है, मतलब जो ऐसे समझिए, मैं एक पर्सन के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, ठीक, ये जो रॉबिन्सन है एक फैमिली है, ठीक है, मैं किसी एक रॉबिन्सन, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मिस्टर रॉबिन्सन लव्स, मिसेस रॉबिन्सन लव, मैं बता रही हूँ कि उस फैमिली के सारे मेंबर्स जो हैं उन सभी को फ्लोरिडा में वेकेशन करना पसंद है। तो जब भी हम किसी एक फैमिली को एज अ ग्रुप ऑफ पीपल डिनोट करते हैं, ठीक है, तब हम उस फैमिली के प्लूरल, हमेशा याद रखिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगुलर, रॉबिन्सन नहीं कह रही हूँ मैं, आई एम नॉट सेइंग द रॉबिन्सन, ठीक है, क्योंकि रॉबिन्सन क्या हो गया, एक
प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन कभी भी अपने साथ आर्टिकल्स नहीं लेता है, ये फैक्ट है। ठीक, तो रॉबिन्सन्स यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, ये कॉमन नाउन बन गया, इसीलिए इसके पहले लगा तो। ठीक, और एक ये भी याद रखिए कि जब भी अगर किसी भी फैमिली का हमें प्लूरल टर्म देना है और उसको एज अ ग्रुप हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल है, माई ब्रदर लिव्स नेक्स्ट डोर टू द जैक्सन्स। अब क्या मेरा भाई जो है वो एक ही जैक्सन के घर के बगल में रहता है, या उस जैक्सन फैमिली में जितने लोग हैं उन सभी के घर के बगल में रहता है? ठीक है, उस जैक्सन, वो जो फैमिली है या जो वो घर है, उसमें एक ही जैक्सन तो रहता नहीं होगा। अगर एक जैक्सन रहता तो मैं कहती मिस्टर जैक्सन, राइट। बट उस फैमिली में सभी लोग जो है वो रहते हैं, वो, और वो सारे क्या है, अपना सरनेम उनका क्या है, जैक्सन। ठीक, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जैक्सन्स यूज किया, बिकॉज आई एम रिफरिंग टू अ फैमिली एज अ ग्रुप इन अ प्लूरल सेंस, तभी इसके पहले द लगाया गया। ठीक है, द आर्टिकल्स लगाया गया। और कोई एग्जाम्पल से समझिए, जैसे अगर मैं सिर्फ एक पर्सन की बात करती कि मिस्टर शर्मा इज वेरी रूड, तो मैंने क्या यहाँ कोई आर्टिकल लगाया? नहीं, क्योंकि मिस्टर शर्मा एक प्रॉपर नाउन है, यहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। अगर इसी तरीके से मैं इसको चेंज कर दूं कि द शर्माज आर वेरी रूड टू देयर नेबर्स, तो यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उस शर्मा फैमिली के जितने भी लोग हैं वो अपने नेबर्स के लिए बहुत ज्यादा रूड है, मतलब ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली। बट if I am just taking them as a group, then I will put, or you'll have to use article the before it. Okay, I hope this is clear to you. I'm just repeating it again. So whenever we are going to use any family group as a plural in a whole, we will use article the before that particular family name. But remember, उसके आगे s यानी कि वो plural होना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है, द कैन बी कंबाइंड विद सर्टेन एडजेक्टिव्स टू रेफर टू अ पीपल सच एज द ब्लाइंड, द फ्रेंच, एक्सेट्रा। अभी हमने सेम चीज देखी थी फैमिली के लिए। ठीक है, हम क्या कर रहे थे कि फैमिली का अगर हमने पूरा एक एज अ ग्रुप देना है उसका, तो हम उसके पहले द लगा रहे थे। बट डिफरेंट क्या था, हम उस फैमिली के आगे प्लूरल नेम, उस फैमिली का प्लूरल होना चाहिए तभी द लग रहा था। बट ये रूल थोड़ा सा डिफर करता है, किस बात में? आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, द कैन बी कंबाइंड, मतलब हम द को जोड़ सकते हैं सर्टेन एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स के साथ में, जब हमें रेफर करना हो अ ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ भी ले सकते हैं, ब्लाइंड, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ब्लाइंड इंसान के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू ऑल द पीपल हु आर ब्लाइंड। ठीक है, हु हैव lost their eyesight due to some reasons or by birth. Similarly, French. So now I'm not talking about one French person. द लगा दिया, मतलब कि अगर हम सभी फ्रेंच के बारे में बात करें, ठीक है, तो द ब्लाइंड, द फ्रेंच, और भी सारी चीजें जिनके पहले अगर हम कुछ एडवर्ब्स के एडजेक्टिव्स के पहले द लगा देते हैं, ठीक है, तो वो एक, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, आई लाइक फ्रेंच। अब यहाँ पे आई लाइक फ्रेंच, फ्रेंच एक नाउन है। ठीक है, इस नाउन के पहले मैंने कुछ भी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच जो है वो रेफर कर रहा है लैंग्वेज को, और जब हम ओमिशन पढ़ेंगे तब और समझ में आ जाएगा कि हम लैंग्वेज के पहले आर्टिकल क्यों नहीं लगाते। ठीक है, तो फ्रेंच जो है वो यहाँ पे एज अ लैंग्वेज वर्क कर रही है, इसलिए हम इसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक, इसी सेम वर्ड को अगर हम दूसरे एग्जाम्पल से समझे तो उसमें क्या लिखा है, आई लाइक द फ्रेंच, मतलब मुझे द फ्रेंच, यहाँ पे क्या हो रहा है, द फ्रेंच पीपल, सो ऑल द फ्रेंच पीपल हु आर देयर आई लाइक देम, मतलब मुझे फ्रेंच लोग अच्छे लगते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर सिर्फ मैंने द हटा दिया था तो वो एक लैंग्वेज बन गया था, और द लगाने से वो रेफर कर रहा है पीपल को। यही हमारा रूल था कि जब भी कोई भी वर्ड एज एन एडजेक्टिव काम करेगा और उसके पहले अगर हम द लगा देंगे, ठीक, उसके पहले हमारा द लगाना है। It can be combined with certain adjectives to refer to a group of people. It will refer to the group of people. यहाँ पे भी the French group of people, the जो भी French है, ठीक है। Similarly, if I talk about like the Americans, ठीक, the Americans, the Americans का मतलब क्या हुआ, जितने भी अमेरिका में लोग हैं।
ठीक। द इंडियंस, यहाँ पे भी क्या हुआ, द इंडियन पीपल, मतलब इंडियन पीपल को मैंने हटा करके वहां पे लिख दिया एस, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स, आई होप इट विल बी, इट मस्ट बी क्लियर टू यू। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट रूल, यूज नंबर 6, दैट सेज, मोस्टली सभी लोगों को ये पता होगा कि हम जब भी हम किसी भी ऐसे स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में बात करते हैं, हम उसके पहले द का यूज करते हैं। वो कौन कौन सी स्पेसिफिक चीजें हो सकती हैं? ओशंस, सीज, कोस्ट, रिवर्स, माउंटेन चेन्स, डेजर्ट्स एक्सेट्रा। तो ये याद रखिएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने लिया ओशन, सीज, कोस्ट, रिवर्स, माउंटेन चेन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो जब भी मैं किसी ओशन के बारे में बात करूँ, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट इंडियन ओशन, ठीक, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इंडियन ओशन नहीं करूंगी, व्हाट विल आई से, द इंडियन ओशन, ठीक। अब सीज, कोई भी सी हो सकती है, कोई भी कोस्ट हो सकता है, कोई भी रिवर हो सकता है, ठीक है, जैसे द नाइल है, द गंगा है, यमुना है। ऑल्दो ये सारे नेम्स हैं, बट क्योंकि ये रिफर कर रहे हैं रिवर को, और हमें ऑलरेडी सबको पता है कि ये सारी चीजें क्या होती है, ये रिवर ही है, ये रिवर्स के नाम है, गंगा, यमुना, नाइल, ठीक है, ये सारी रिवर हैं। तो रिवर यहाँ पे छुप जाता है, हम द उस पर्टिकुलर नाम के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, हम रिवर के नाम के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए द लग रहा है वहां पे, ठीक है। द, आप ये बात समझिए कि गंगा तो प्रॉपर, और अभी हमने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन के पहले हम द नहीं लगाते हैं, द क्या कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। आप ये समझिए कि मैं वो द यूज कर रही हूँ रिवर्स के लिए, मतलब जो उस चीज, जो वो एक्चुअली वो चीज क्या है उसके लिए मैंने यूज किया, ठीक। तो जब भी हम किसी भी रिवर की बात करेंगे उसके पहले द लगाएंगे, द नाइल, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, एनी ऑफ द रिवर, ठीक है। सिमिलरली माउंटेन चेन्स, नाउ दिस इज अ बिट क्रिटिकल बिकॉज मेनी ऑफ यू मे थिंक कि कुछ माउंटेन्स के पहले हम लगाते हैं द और कुछ के पहले नहीं लगाते हैं। तो एक बात समझिए, मैंने इसमें ऑलरेडी क्लियरली लिखा हुआ है कि हम जब भी माउंटेन चेन्स की बात करेंगे तब हम उसके पहले द आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। लाइक द हिमालयाज, नाउ मैं सिर्फ एक हिमालय की बात नहीं कर रही हूँ, हिमालय एक पर्वत तो है नहीं, एक बहुत सारे पर्वत श्रृंखला है, द माउंटेन रेंजेस, ठीक। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग आर्टिकल द बिफोर इट, ठीक है। सिमिलरली और किसी भी माउंटेन की बात करूं, चलो अच्छा मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूं अगर, तो मैंने यहाँ पे क्या कोई आर्टिकल लगाया? आई जस्ट स्पोक माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट एक पर्वत है, इसलिए इसके पहले मैंने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है। वेयर एज जब मैं एक पर्वत श्रृंखला की बात करूंगी, यानी कि अगर हम माउंटेन रेंज, माउंटेन चेन्स की बात करेंगे, तो इसके पहले हम आर्टिकल लगाएंगे, और वो आर्टिकल कौन सा होगा? दैट विल बी डेफिनेट आर्टिकल द। डेजर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल द सहारा डेजर्ट, अब किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे तो है नहीं, वो डेजर्ट है, ठीक है, द सहारा, अब डेजर्ट वहां छुपा हुआ है, ठीक, तो इसलिए हमने उसके पहले द लगाया। क्लियर? द गोबी डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, तो ऑल द डेजर्ट्स व्हिच आर देयर, उनके पहले भी आर्टिकल द लगता है। तो याद रख लीजिएगा ये सारी चीजें कि जब भी हम ओशंस, सीज, कोस्ट, रिवर्स, माउंटेन चेन्स यानी कि माउंटेन रेंजेस या किसी डेजर्ट के बारे में उन डिस्कस करने वाले हैं या बात करेंगे अपने सेंटेंसेस में, तब हम उसके पहले आर्टिकल द यूज करेंगे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज द रूल इज अबाउट टाइम एक्सप्रेशंस। नाउ टाइम एक्सप्रेशंस आर जनरली कंफ्यूजिंग, दैट कैन बी कंफ्यूजिंग एट सम टाइम्स, सो मेक, आपको ये बात मतलब ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी हम कुछ टाइम एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं तो उनमें द आता ही आता है एज अ एज एन आर्टिकल। देखिए, टाइम एक्सप्रेशन कैन बी स्पेशली कंफ्यूजिंग, इट कैन बी, people will not be able to understand that what we are talking about, right? So that's why they are confusing. So इसीलिए the is used in some expressions, कुछ ही टाइम्स एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिनमें हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं वैसे? वो इन द मॉर्निंग, क्या हमने, क्या कभी किसी ने आज सुना है इन अ मॉर्निंग, आई वोक अप इन अ मॉर्निंग? नहीं ना। या आई वोक अप इन एन मॉर्निंग? नहीं ना, ए न एन, वी विल से आई वोक अप इन द मॉर्निंग, I woke up in the morning, right? We are not going to say that I woke up in morning. That is also wrong. ठीक? तो जब हम किसी भी टाइम एक्सप्रेशन की बात करेंगे और वो स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन होना चाहिए, in the afternoon, in the evening. So whenever we are discussing about any time expression, the will be used in them.
फाइन। याद रखिएगा ये बात कि टाइम एक्सप्रेशंस कंफ्यूजिंग होते ही होते हैं, ठीक है। हमें टाइम एक्सप्रेशंस को समझने के लिए उनमें आर्टिकल लगाना होता है, ठीक। और वो आर्टिकल्स कैसे आएगा? दैट इज आर्टिकल द, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून एंड इन द इवनिंग। क्लियर? चलो, ऑलमोस्ट 7 रूल्स हो गए हैं, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रूल नंबर 8। So the is used before an adjective when it represents a class of persons. तो जब भी हमें किसी भी एक क्लास को बताना होगा, कोई भी क्लास होगी, बट क्लास किसकी होगी? पर्सन की। तो अगर हमें किसी भी एक स्पेसिफिक क्लास को डिटरमाइन करना होगा, उसको स्पेसिफाई करना होगा, तब हम उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पे द भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? रिच शुड, अगर मैं यहाँ पे द हटा दूं, सिर्फ ऐसे सिंपली बोलूं रिच शुड हेल्प पुअर, गड़बड़ नहीं लग रहा है सेंटेंस? खुद ही समझ में आ जाएगा यार ये कैसा सेंटेंस हुआ, ठीक है। तो जब भी हमें किसी भी एक क्लास को अलग से स्पेसिफाई करना होगा, या ये बताइए मुझे, क्या एक ही रिच को एक पुअर की हेल्प करनी चाहिए? ऐसा होगा क्या? नहीं ना। अगर आपके पास पैसे होते हैं, आपको भिखारी दिखते हैं या कोई ऐसे लोग दिखते हैं जो कि नीड में हैं, तो आप उनकी हेल्प करते हैं, राइट। जरूरी थोड़ी है कि आप सिर्फ एक की हेल्प कर दिए तो आप ये सोचेंगे कि मैंने पढ़ा था कि रिच शुड हेल्प पुअर, मतलब एक रिच को एक पुअर की हेल्प करनी चाहिए, नहीं, राइट। व्हाट दैट एग्जैक्टली मीन्स, जब भी हम किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्लास कोई भी हो सकती है, ठीक, रिच, पुअर, ओल्ड, यंग, एनी। So whenever we have to determine or identify any class, we will use article the before them, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, the rich should help the poor, मतलब जितने भी रिच हैं उन सबको जितने पुअर हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, the old are respected by the young, that means जो भी ओल्ड हैं वो सभी रिस्पेक्ट किए जाने चाहिए यंग से। ऐसा तो है नहीं का एक ही यंग जो है वो एक ओल्ड की रिस्पेक्ट कर देगा, या अगर आपके घर में सिर्फ बाबा हैं तो आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, राइट। सो एग्जैक्टली वही मीन होता है कि जब भी किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें उस क्लास के पहले एज एन एडजेक्टिव जब वो आ रहा है तो उसके पहले आर्टिकल द यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज यूज नंबर 9। नाउ व्हाट दिस यूज सेज, the is used as an adverb with a comparative sense. Now this can be a bit confusing for you कि मैंने अभी आपको बताया था कि the सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के साथ में लगता है, अभी पढ़ा था ना हमने रूल में। तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की यूज करेंगे, यानी कि जब हम एक का कंपैरिजन करेंगे, किसी को बहुत को अलग से स्पेसिफाई करेंगे, तब हम उसमें सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। बट यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि हम जो कंपैरेटिव डिग्री आती है उसमें भी द यूज करते हैं। तो बेटा ये बात सही है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज किया जाए, कभी कभी हम द का यूज कंपैरेटिव डिग्री में भी कर सकते हैं, ठीक। बस चीजें ये आपको ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ पे पर्सन के लिए जब यूज बात करेंगे, ठीक है, जब भी नाउन के रिगार्डिंग बात करेंगे तभी हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। इफ आई से, चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि शी इज बेटर देन यू, ठीक है। मैंने क्या कहा? शी इज बेटर देन यू। यहाँ पे मैंने दो अलग अलग चीजें ली, शी और यू, और उनका कंपैरिजन कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे मैंने किसी कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाया? नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी प्रोनाउन के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक। और आर्टिकल्स हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल्स लगते हैं नाउन के पहले, आर्टिकल्स प्रोनाउन में यूज नहीं किए जाते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या जगह दिख रही है आपको कभी भी कोई भी कि हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल्स पुट कर सकते हैं? नहीं, राइट। सो जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री लेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री वो भी याद रखिएगा डबल कंपैरिजन होता है, ठीक। इस सेंटेंस में देखिए दो कंपैरिजन, डबल कंपैरिजन का मतलब क्या है? एक पहले वाले सेंटेंस के पार्ट में भी कंपैरिजन होगा और सेंटेंस के बाद वाले पार्ट में भी कंपैरिजन होगा, तब हम दोनों से कंपैरिजन के पहले द या आर्टिकल यूज करेंगे। द सूनर द बेटर, ठीक। यहाँ पे जितना जल्दी उतना अच्छा, आप ऐसा समझिए, ठीक। तो जितना हम जल्दी कोई काम करेंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए, राइट। इसीलिए ये दो कंपैरेटिव डिग्रीज एक साथ आ गई, इसीलिए हमने दोनों के पहले द यूज किया।
Okay, till now we have understood use 9 of article the. Now let's come to our next slide, that is use number 10, which says the is used before comparative degree in case of a choice. That means हमें कभी भी अगर किसी दो चीज़ों के बीच में comparison करना होगा तब हम the as a article use करेंगे, right? अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम the को comparative sense में ज़्यादा use नहीं करते हैं. The is used with the superlative degrees of adjectives, but English is full of exceptions. So there are several cases जहाँ पे हम the as a comparative sense में use करने वाले हैं और उनमें से एक है ये. जब भी हमें दो के बीच में चॉइस करनी हो तब हम the का यूज कर सकते हैं, बट याद आपको इसमें रखना है इतना कि जब वो कंपैरेटिव सेंस देगा तब. फॉर एग्जाम्पल, शी इज द वीकर ऑफ द टू सिस्टर्स. नाउ वी हैव टू चॉइसेस हियर. पहला तो वी हैव अ चॉइस हियर दैट इज टू सिस्टर्स, राइट? और प्लस यहाँ पे हमने एक नाउन यूज किया है. नाउन के साथ में हम कंपैरिजन ला रहे हैं, हम किसी भी प्रोनाउन के लिए कंपैरिजन का यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसके पहले मैंने आर्टिकल द यूज किया, राइट? So she is the weaker of the two sisters. And the second example says, which is the more beautiful of the two sisters, right? So यहाँ पे the more beautiful of the two sisters. Two sisters के लिए ही आया the, and more beautiful यहाँ पे comparative sense शो कर रहा है, इसके लिए मैंने इसके पहले article the use किया. Next देखते हैं हम use number 11. The is used before proper noun for the sake of comparison. Now जब मैं ये रूल पढ़ूंगी तो आप लोग मुझसे बोलोगे कि मैम आपने तो समझाया था कि हम कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले the नहीं लगाते हैं, बट याद रखिएगा the का यूज हम प्रॉपर नाउन के पहले तब करते हैं जब हमें उस प्रॉपर नाउन के नाम से नहीं उसके काम से मतलब होता है. ठीक है, याद रखिए, मैंने दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब प्रॉपर नाउन के पहले आप the तभी लगाओगे जब हम एज उनका काम ध्यान में रखें. ठीक है, उनके नाम के लिए हम नहीं लगा रहे हैं, वहां पे हम उनके काम के यूज करने के लिए लगा रहे हैं. ठीक है, अब लेट्स अंडरस्टैंड इट्स विद एग्जांपल. एग्जांपल है सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया. मिल्टन इज अ ग्रेट पोएट, ठीक है, बट ही इज नॉट ऑफ आवर कंट्री, बट सूरदास इज ऑफ आवर कंट्री. अब हमें इन दोनों का कंपैरिजन करना है. ठीक है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे जो कवि हैं सूरदास, वो उनका काम एग्जैक्टली वैसा है जैसा कि मिल्टन का है. ठीक, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस मिल्टन जो कि एक प्रॉपर नाउन है, नाम है किसी का, उसके पहले मैंने द लगाया. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं नाम से मतलब नहीं रख रही हूँ, मेरा मेन मोटिव है मिल्टन का काम दिखाना, और मैं दोनों के काम को कंपेयर कर रही हूँ कि सूरदास का काम एग्जैक्टली सेम है जैसा कि मिल्टन का है. सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. नाउ सेम इन दिस सेंटेंस ऑल्सो मैं शेक्सपियर से कालिदास का कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मैं दो नाउन का कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ. मैं यहाँ पे प्रॉपर नाउन के पहले द इसलिए लगाया है ताकि मैं इनके काम को उनसे कंपेयर कर सकूं. ठीक है, जब उनके काम को किसी से रेफर करना होता है तब हम उस प्रॉपर नाउन के पहले द लगा देते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट रूल कहता है द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर स्पोर्ट्स कप्स एंड ट्रॉफीज. So whenever we are going to discuss about any sport cup or any trophy, this is a fact that we are going to use article the before any sport cup of any trophy. For example, India won the Singer Cup last year. So it is a trophy, it's a cup, therefore we are using article the before it. Similarly, next examples, a number of teams are taking part in the World Cup. So World Cup के पहले बहुत सारी पार्ट ले रही है. World Cup क्या एक ट्रॉफी है, ठीक है, एक स्पोर्ट कप है, इसलिए उसके पहले मैंने द लगाया. चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट रूल यूज नंबर 13 है द इज यूज्ड विद कार्डिनल पॉइंट्स. जितनी भी कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, जितने भी डायरेक्शंस होती हैं, उन सभी डायरेक्शंस के पहले हम द लगाते हैं. ठीक, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, साउथ. अब एक बात आपको बस ये ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ पे उस ईस्ट वर्ड्स के लिए, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एक्सेट्रा के लिए हम द नहीं लगा रहे हैं. हम उसके बाद जो चीज छुपी हुई है दैट इज डायरेक्शन. ठीक है, दैट इज अ कार्डिनल पॉइंट, राइट. मेनली हम डायरेक्शन वर्ड को स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें पता है ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये सारी डायरेक्शंस हैं, इसीलिए इनके पहले द लगाया जाता है. बिकॉज वी आर रेफरिंग हियर टू द डायरेक्शन, नॉट टू दैट वर्ड ईस्ट. ईस्ट इज अ प्रॉपर नाउन, वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट फॉर दैट, बट दिस द इज हियर फॉर द थिंग दैट इज द डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन एक कॉमन नाउन है, वो यहाँ पे छिपा है, उसको जनरली लिखने की जरूरत नहीं होती है. इसीलिए कभी भी हम जब कार्डिनल पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं उसके पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट यूज इज यूज नंबर 14 which says whenever any units of measurement is used we have to use article the.
कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है हम उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। फॉर एग्जाम्पल, द क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। क्लियर? नाउ एक्स आर सोल्ड बाय द डजन। सो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, मैंने यहाँ पे मीटर यूज किया और डजन। तो जब भी हम कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगाएंगे, वो डजन हो, मीटर हो, किलो हो, सेंटी हो, any of the other things, we are always going to use article the before that particular unit of measurement. Now let's come to the last use, that is use number 15. That says article the is used before caste and communities. Whenever we are going to discuss any caste or any communities, याद रखिए आपको उन सभी कास्ट और कम्युनिटीज के पहले आर्टिकल द का यूज करना है। कुछ भी हो सकता है, लाइक द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स। लेट्स टेक द एग्जांपल, द राजपूत्स आर ब्रेव पीपल। सो यहाँ पे मैं एक पूरी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, पूरे एक ग्रुप की बात कर रही हूँ, ठीक है, दैट इज राजपूत्स। So they are what? They are brave. So I'm not referring to one person. I'm telling that every person of that community is brave. That's why इसके पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे। Similarly, the Marathas, याद रखिएगा प्लूरल सेंस में मैंने इस सेंटेंसेस में यूज होगा, तब आपको द यूज करना है। तो the Marathas are hard working. So all the people who are Marathas, they are hard working. I'm repeating it again. Whenever we are going to use article the, make sure it is just coming just before any community or any group, any religious group, right? So this was the last slide of this video. I hope the use of our definite article the is clear, although there are many more uses to come which we'll study in the next video. Till then, I hope this is clear. Do practice and enjoy. Thank you so much.